Assalamu alaikum. So this is the second part of previous lecture. So this is about the limit inferior of a sequence of sets. So last lecture में मैंने आपको define करके दिया था कि if you have a countable sequence of sets, say ek, for k is greater than or equal to 1, then the limit inferior of k, ek is exactly equal to the union over intersection. So the union for n is equal to 1 to plus infinity, where intersection for k is equal to n to plus infinity ek. So ये basically formal definitions है limit inferior की, लेकिन अगर मैं फर्ज कीजिए कोई भी point ले रही हूँ, let x belongs to the limit infimum of ek. So this implies your x belongs to the union for n is equal to 1 to plus infinity, and the intersection for k is equal to n to plus infinity ek. Okay, so this implies that your x belongs to the intersection for k is equal to n to plus infinity ek for some n is greater than n equal to 1. So union, so when you have a point from union, so when your x belongs to say the union of an, so this implies your x belongs to an for some, for at least one, for some n is greater than or equal to 1. So by using this union definition, I can write that your x belongs to the intersection of ek's. So this implies your x belongs to ek for all, because now you open your intersection for all k is greater than n equal to n, and for some n is greater than n equal to 1. So if I write this whole description in the set theoretic form, so I will write that the limit infimum of ek for k is actually equal to all those points x such that there exist, because for some mean there exists an n is greater than or equal to 1, such that your x belongs to ek for all k is greater than or equal to n. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट है that belongs to for all but finitely many ens. ठीक है, so this is equivalent to say that your x such that x belongs to en ek, you can say for all but finitely many ens, यानी कि फाइनाइट एन्स को छोड़ के जो इन्फिनिट पार्ट पड़ा होगा सीक्वेंस का, उन सब में ये पॉइंट जो है वो लिव करेगा. सो इसका मतलब कि अगर आप इसको गौर से देखें, इसका मतलब यही है कि अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है E1, E2, E3, E4 and so on. So what does that mean? There exists an n. I will say that x belongs to the limit infimum of n en. So this is equivalent to say that there exists an n is greater than n equal to 1. एक n ऐसा एग्जिस्ट करेगा. फर्ज करें आपका जो n है ये E4 है, या फर्ज करें कि यहाँ पे कहीं आपका E1000 पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आगे E1000 और 1 एंड E1000 and 2 and so on, ये आगे की चेन चल रही है. नॉट चेन, एक्चुअली सेट थेटिक में चेन नॉर्मल इंक्लूएंस इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये समझ लें कि ये आगे का इन्फिनिट पार्ट पड़ा हुआ है सीक्वेंस का. ठीक है,
सो सो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एन, फर्ज कीजिए कि आपका जो एन है वो 1000 है, ठीक है। सो दैट फॉर एन x बिलोंग्स टू ई के फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1। सो इसका मतलब है कि x जो है वो इसमें भी पड़ा हुआ है, x जो है वो इसमें भी पड़ा होगा, फॉर ऑल, फॉर ऑल x जो है वो इसमें भी पड़ा हुआ है। सो x जो है वो इस आगे जितने भी इंफिनिटी तक इंफिनिट सेट्स पार्ट है सीक्वेंस का, उन सब में x जो है वो लिव कर रहा है। सो इसका मतलब है कि इवेंचुअली x जो है वो अपीयर होना शुरू कर देता है आपकी सीक्वेंस ऑफ सेट्स में, ठीक है। सो इसीलिए वो लिमिट इंफीरियर के साथ नॉर्मली इवेंचुअली वर्ड यूज करते हैं। सो इवेंचुअली द पॉइंट्स अपीयर्स इन द सीक्वेंस, ठीक है। हो सकता है कि फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स छोड़ दिए, सो बट फाइनाइटली मैनी पार्ट्स में ये ना पड़ा हो, लेकिन आपको एक ऐसा एन, कम से कम एक एन, सो ज्यादा से ज्यादा बहुत से हो सकते हैं, एक ऐसा एन मिल जाता है कि उस एन के बाद जितनी भी चेन चल रही है आपकी सीक्वेंस की, इन्फिनिट चेन, उसमें आपका पॉइंट जो है वो लिव करेगा। तो आई होप ये समझ आ गई होगी और मैं इसको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जांपल अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। वो एग्जांपल क्या थी आपकी, कि आप सीक्वेंस ऑफ सेट ले रहे हैं ई एन, और ई एन जो है वो आपका किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0 एंड 1/n plus 1, and if your n is even, and this is your -1 minus 1/n and 0 if your n is odd, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से मैंने आपको ये सेट्स का बताया था कि इवन सेट्स कैसे अपीयर हो रहे हैं और ऑड सेट्स। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो लिमिट सुपीरियर का, तो उसमें क्या था कि आपका 0 और 1, ये 0 1 सेट जो है ये हर इवन सेट में कंटेन कर रहा है, और -1 और 0 ये वाला सेट जो है ये वाला जो सेट है ये इट्स कंटेन इन, आई थिंक मैं ये नेक्स्ट पेज पे आपको बता दूं। सो अब ये देखें, ये आपके E1 है, इसी सेट सीक्वेंस का E2 चल रहा है, E3 चल रहा है, E4 है, एंड E5 है, E6 है, दिस इज E7 एंड so on. So आपकी if you remember, 0 is here, 1 is here, and -1 is here, and this part, ये जो आपका ये वाला सेट है, ये वाला जो सेट है, ठीक है, ये सबसेट है, सबसेट्स ऑफ odd, I will say odd en mean your n is odd, और यहाँ पे ये जो है ये सबसेट होता है 0 and 1, that is the subset of even ens के, ठीक है। सो ये लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि लिमिट इंफीरियर इस सीक्वेंस की क्या होगी। तो फर्ज कीजिए अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट लेती हूँ, फर्ज करें अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ से पॉइंट लिया मैंने, x लिया, ठीक है, और x बेसिकली अगर आप देखें तो हर इवन में अपीयर होगा, क्योंकि ये इवन्स का सबसेट्स है, जितने भी इवन्स हैं E6 है, उसके बाद E8 एंड सो, ठीक है, लेकिन x जो है वो ऑड में अपीयर्स नहीं होगा। अगर आप देखें तो लिमिट जो आपकी लिमिट इंफीरियर थी उसकी डेफिनेशन क्या है कि x बिलोंग्स टू द लिमिट infimum of a sequence ENs, ठीक है, if and only if there exists an n। सबसे पहले आपने n एक ऐसा लेना है, there exists at least one n such that x belongs to ek for all k is greater than n equal to n। फर्ज कर ले अगर मैं, मेरा डेफिनेटली एन जो है वो या इवन होगा या ऑड होगा। फर्ज कीजिए आपका एन जो है वो इवन है, इवन अगर मैं एन ले रही हूँ तो ओके, इवन में आपका सो इवन के बाद यानी फर्ज कीजिए आपका एन जो है वो एन जो है वो 4 है, इवन है, ठीक है, या 6 है, जो भी है। तो इवन के बाद अगर आप देखें तो E4 E5 एंड E6 ये सेट्स और ये चेन अपीयर हो रही है, ठीक है। आपका एक्स जो है वो बिकॉज आफ्टर दैट योर एक्स बिलोंग्स टू E फॉर ऑल के, तो E4 के बाद जितने भी सेट्स अपीयर होंगे उसमें आपका पॉइंट जरूर लिव करना चाहिए, ठीक है। सो E4 में तो आपका पॉइंट लिव करेगा, लेकिन E5 में लिव नहीं करेगा, क्योंकि E5 ऑड है और ऑड का
हाँ, अनलेस कि आपका एक्स जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो जीरो है। ठीक है, अगर जीरो के अलावा आप कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1 और जीरो, जो कि हर ऑड सेट्स में कंटेन कर रहा है इंटरसेक्शन 0 और 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो बस जीरो। सो जीरो के अलावा अगर आप यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे तो वो डेफिनेटली इवन में तो जाएगा, लेकिन उस इवन के बाद जो ऑड सेट्स अपीयर होंगे, ऑड इंडिसेस के कोरस्पॉन्डिंगली सेट्स अपीयर होंगे, उसमें वो पॉइंट अपीयर नहीं हो सकता। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल के में अपीयर होना चाहिए। द सेम अगर मैं यहाँ से y लूंगी तो अगर मेरा n जो है वो 4 है तो ठीक है, n 5 में अपीयर हो जाएगा, y जो है वो 5 में अपीयर हो जाएगा लेकिन y 6 में अपीयर नहीं होगा, और इसी तरह y 7 में अपीयर हो जाएगा लेकिन y 8 में अपीयर नहीं होगा, अनलेस के पॉइंट आपका जीरो ना हो। सो सिर्फ जीरो एक ऐसा पॉइंट है कि अगर मैं कोई भी n लूं, जैसे n इज इक्वल टू 4 है, सो इसके लिए देर एग्जिस्ट भी नहीं रहेगा, कोई भी आप n ले जाए, बट मुझे कम से कम एक n की एग्जिस्टेंस चाहिए ऐसे। अगर मैं n4 ले लूंगी तो n4 से n5 n6 n7 सब में जीरो लिव कर रहा है। यहाँ पे ये देखें कि जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है en से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझ लीजिएगा जो जो आपकी लिमिट इंफीरियर है वो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, नो, ये बिल्कुल नहीं है। लिमिट इंफीरियर की आपकी कम से कम एक एन की एग्जिस्टेंस ऐसी हो जाए कि उस एन, ई एन के बाद ई एन प्लस वन, ई एन प्लस टू, ई एन प्लस थ्री एन सोन, उन सब में पॉइंट्स जो है वो लिव करें। लेकिन आपकी लकीली एग्जांपल ऐसी आ गई है कि आप कोई भी एन पिक करेंगे उसके बाद जितनी भी इन्फिनिट चेन होगी उसमें जीरो पड़ा होगा। आप ये देखें यहाँ से कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट इंफीरियर में नहीं जा रहा, और यहाँ से भी कोई भी पॉइंट लिमिट इंफीरियर में नहीं जा रहा, सिर्फ बस जीरो जो है, जीरो इज द ओनली पॉइंट, zero is the only point that is in the limit inferior. So the limit inferior of the sequence en exactly equal to 10.0। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। थैंक यू सर।